ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಅದೇ ರೀತಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಒಟ್ಟು 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಓದಿದಂತಹ 1,000 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು SSLCಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಂಕಗಳನ್ನು 90%ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 11th ಆ್ಯಂಡ್ 12th PUC ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ನೀಟ್ ಮತ್ತು JEE PUCಯಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು 75% ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದೊಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶಾಹೀನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಉರ್ದು ಮೀಡಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಗೊಳಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದೇನೆಂದರೆ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಏಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್, ಕೇರ್ಸ್. ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಅಥವಾ ಮಂದಿರ ಅಥವಾ ಚರ್ಚ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು 40% ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಅವರು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ತಂದು ಶಾಹೀನ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಶಾಹೀನ್ ತನ್ನ ವತಿಯಿಂದ ಅದು ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅದರಿಂದ ಈ ಒಂದು ಸಾಮುದಾಯಿಕ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಲು ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ 11th 12th ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ನಾವು ಜಾರಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಮುದಾಯದಿಂದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಸೀದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಸಂಘಟನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಊರಿನ ಒಂದು 15 ಜನ ಸೇರಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ 40% ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ನಾವು ಶಾಹೀನ್ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. हमारे अपने इंटेक का 20% स्टूडेंट्स को हम मदद करें. 80% से फीस लेते हैं और 20% स्टूडेंट्स को मदद करते हैं, उनको रियायत देते हैं, स्कॉलरशिप देते हैं. हम चाहते हैं कि कोई बच्चा सिर्फ पैसे की खातिर अपना एजुकेशन डिसकंटिन्यू ना करे. शुरू से हम ये प्रोग्राम चलाते हैं. हमारे बहुत मशहूर प्रोग्राम शाहीन स्कॉलरशिप ग्रुप कई सालों चला, और लॉकडाउन के बाद एक हम बहुत ही स्पेशल स्कीम अनाउंस किए थे. एक प्रोग्राम था स्कॉलरशिप प्रोग्राम केयर्स के नाम से, कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट. ज़ाहिर है सिर्फ इंस्टीट्यूशन पूरा हक अदा नहीं कर सकता, पेरेंट्स भी नहीं कर सकते, सिर्फ चंद NGO हक अदा नहीं कर सकते, ज़रूरत पूरी नहीं कर सकते. हर एक का फ़र्ज़ होता है कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन करें. तो ये केयर्स का मतलब ये है, जैसे कि मैं बताया, ये कम्युनिटी एड एंड रिस्पांस टुवर्ड्स एजुकेशनल सपोर्ट है. यानी एक कॉलोनी में कॉलोनी के लोग एक गरीब बच्चे को चुनें और पूरे कॉलोनी के लोग कलेक्शन करके कुछ पैसा जमा करें, 40% कलेक्शन करें, 60% स्कॉलरशिप शाहीन देगा. इसका आसान तरीक़ा है, एक मस्जिद के ज़िम्मेदारान, मस्जिद के मुसल्लियान उस मस्जिद के इलाक़े में एक गरीब बच्चे को ढूँढें और वहाँ पर उस मस्जिद के इलाक़े से कुछ साहिब खैर हजरात से कुछ कलेक्शन करें और 40% कलेक्शन करें, 60% हम कम कर देंगे. ये हमारे इंडिया भर में 108 सेंटर जो चलते हैं, हर सेंटर में कुछ सीट हम मुख्तस किए हैं. ये मैसेज कम्युनिटी के ज़िम्मेदारों को, आवाम को पहुँचे, मस्जिद के ज़िम्मेदारों को पहुँचे. तो इस तरह से केयर्स के ज़रिए बहुत सारे बच्चों का बेनिफिट हो सकता है. इस साल ख़ास तौर पर हम और एक स्कीम रखे हैं. 1000 स्टूडेंट्स को इंडिया भर के जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं, कड़ा मीडियम हो सकता है, मौलाना आज़ाद रेसिडेंशियल स्कूल हो सकता है, मोरारजी देसाई केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय या और कोई रेसिडेंशियल स्कूल्स गवर्नमेंट के किसी भी मीडियम के हैं, वो ऐसे बच्चों को 90% के ऊपर वाले हमारी वेबसाइट पे अप्लाई करें, shaheengroup.org पे अप्लाई करें. तो उसमें से काउंसलिंग करके
हमारे इंडिया भर के 107-8 सेंटर में कहीं 10 कहीं 15 कहीं 50 जो है स्टूडेंट को 75% स्कॉलरशिप के साथ एडमिशन दिया जाएगा। ज़ाहिर है गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं तो गरीब ही होते हैं, अक्सरियत गरीबों की होती है, और वो मेहनत करके रेसिडेंशियल स्कूल में मेहनत करके कुर्बानी दे के आगे बढ़ते हैं, तो उनको मौका मिलना चाहिए। ये एक हमारी दूसरी स्कीम है। तीसरी स्कीम कर्नाटका स्टेट के लिए है, ख़ास तौर पे कर्नाटका स्टेट माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की तरफ से 100 मदरसों में दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम शुरू करने का एक बहुत ही मुनफरिद, पूरी तारीख़ में हमारी मुल्क की पूरी हिस्ट्री में, आज़ाद मुल्क की पूरी हिस्ट्री में पहली मरतबा ये स्कीम बनी है। गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। दीनी तालीम के साथ साथ असली तालीम 97 सेंटर्स काम कर रहे हैं, बहुत ही निहायत ही कामयाबी के साथ काम कर रहे हैं। वहाँ पर ड्रॉप आउट बच्चे या हाफिज़ बच्चे या ड्रॉप आउट बच्चे जो कभी स्कूल नहीं गए थे, तो उनको हम दीनी तालीम में ज़रूरी दीनी तालीम देना चाहेंगे। उनको हाफिज़ नहीं बना रहे हम, उनको आलिम नहीं बनाएंगे। पहले से जो बच्चे हैं मदरसे में वो ज़ाहिर है हिफ्ज़ करेंगे, नाज़रा पढ़ेंगे, आलिमियत करेंगे। नए ऐसे बच्चों को तकरीबन 2000 स्टूडेंट को पूरे कर्नाटका के 97 मदरसों में एडमिशन की गुंजाइश है। इसके तफसीलात madrasa+.org पे हासिल कर सकते हैं। पूरे कर्नाटका भर में ये फैले हुए हैं, और ऐसे बच्चे जो 12 साल के ऊपर के हैं और वो कुछ नहीं पढ़े हैं, तो हम उनको बुनियाद के साथ उनकी इम्प्रूवमेंट करके उनको 2 साल में 10th पास कराएंगे। सिर्फ 10th पास ही नहीं कराएंगे, बल्कि उनको एक लाइफ स्टाइल देंगे, एक कल्चर डिसिप्लिन देंगे, उनको मेहनती बनाएंगे और ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराएंगे। हमारा मानना है कि हर एक को हाफिज़ बनना ज़रूरी नहीं है, हाफिज़ बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। हर एक को आलिम बनना ज़रूरी नहीं है, आलिम बनना फ़र्ज़ किफ़ाया है। लेकिन हर एक को ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ होना ज़रूरी है। तो हम चाहते हैं कि मुल्क भर के मदारिस में एक ज़रूरी दीनी फ़र्ज़ आइन वाला शोबा शुरू हो जाए। उसका नाम हम रखे हैं दीनियात प्लस। दीनियात प्लस के भी मराकिज़ पूरे इंडिया भर में शुरू होने जा रहे हैं, और ये दीनियात प्लस का शोबा 97 मदारिस में एडमिशन की गुंजाइश है। मैं तमाम नाज़रीन से ख्वाहिश करूँगा कि आप देखिए, आप किसी को जानते हैं जो बच्चा 12 साल के ऊपर का हो गया है और कुछ नहीं जानता, उसको हम तरबियत करते हुए ज़रूरी दीनी तालीम से वाकिफ़ कराते हुए 2 साल के वक़्फ़े में 10th पास कराएंगे। ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। NIS उर्दू मीडियम से हम पास कराएंगे। इसके अलावा एक बहुत बड़ा स्टेप अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है, वो ये कि हिंदुस्तान भर के स्टूडेंट के लिए एक मौका है। तजिकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से एक वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी चलती है, वो यूनिवर्सिटी से शाहीन का MOU हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। शाहीन उस यूनिवर्सिटी को मैनेज करेगा जहाँ पर MBBS का एडमिशन है, जो इंडिया की फ़ीस जो होती है आमतौर पर उसका 20% में हो जाएगा। शाहीन का माहौल, शाहीन का कल्चर और शाहीन का डिसिप्लिन वहाँ रहेगा। शाहीन मैनेज करेगा और इंडियन करिकुलम रहेगा पूरी तरीके से। इंडियन फूड वगैरह जो है हम वहाँ कर रहे हैं, हम खुद मैनेज करेंगे, वो उसमें दाखिले जारी हैं। इसके लिए तफसीलात के लिए shaheen.group.org पर हासिल कर सकते हैं, और इंडिया भर के हमारे ब्रांचेस और फ्रेंचाइजीज़ में लोग कांटेक्ट कर सकते हैं।